بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے تو اس کو ہائر کر لیا جاتا ہے، اور ہائر کر لینے کے بعد اس کی اجرت اس کو دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے وہ کرایہ ہی ہے، یاد رکھیے گا، لیکن اب تھوڑا انسانی شرافت ہے کہ اس کو کرائے کا نام نہ دے کر کے پہلے اجرت کا نام دیتے تھے، اب تو جو ہے ذرا اجرت کا نام نہ دے کر کے اب اس سیلری کا نام دے لیا جاتا ہے، یا جو ہے تنخواہ، فارسی کا لفظ ہے یہ تنخواہ، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تنخواہ کہتے ہیں، یا کہیں کہیں مشاہرہ کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ مشاہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، مہینے مہینے یہ ملتی ہے اجرت، اس لحاظ سے اس کو مشاہرہ کہتے ہیں۔ شہر عربی زبان میں یہ مہینے کو کہتے ہیں، تو اسی سے یہ لفظ جو ہے بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سیلری کہیں، اجرت کہیں، جو ہے کرایہ کہہ لیں، آپ جو لفظ بھی استعمال کریں، ہے تو یہ وہی چیز۔ اس میں کسی انسان کو اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس سے جو دوسرا آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کی صلاحیت کا، اسی کی صلاحیت کو ہائر کر لیا جاتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے، اجرت دے دی جاتی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہی مسئلہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں اس مسئلے کے تعلق سے، کہ کرائے پر کہیں کام کرنا، میں نے کرائے کا لفظ پھر استعمال کر دیا، تھوڑا انسانی شرافت کے لحاظ سے اجرت کہہ لوں یا تنخواہ کہہ لوں، کہیں کام کرنا، اجرت پر کام کرنا، یہ ایک ذریعے معاش ہے، معاش کا ایک ذریعہ ہے۔ معاش کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ لفظ جو ہے مشکل ہو تو، یعنی انسان کی روزی روٹی کمانے کے لیے، اس کے اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، اس کے اپنے جو ہے پیٹ کے لیے جو وہ محنت کرتا ہے، دو پیسہ کمانا چاہتا ہے، تو یہ کمانے کے چار مشہور طریقے ہیں۔ تو اس کو آپ سورس آف انکم کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ تو سورس آف انکم یہ چار ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہے یہ اجرت پر کام کرنا، یعنی آدمی اپنی صلاحیت کو کسی کے پاس جو ہے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنی صلاحیت کو اسے دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس سے کچھ اجرت لیتا ہے، یہ ان کا اس کی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ اجرت پر کام کرنا، اس کو کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں کو سیلری ملتی ہے، اور اچھا خاصا انسان جو مین پاور ہے نا اس وقت، تو یہ اس کا بڑا حصہ ابھی ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ یہ اسی ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی وہ اجرت پر کام کر کے ہی وہ پیسے کماتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس میں اتنے زیادہ پیسے کماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ بڑی جو ہے، یعنی آج کی زبان میں کہنا ہو تو بڑی اونچی سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں، اور ان کا جو ہے لیونگ اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ بڑا ہائی مانا جاتا ہے، بڑے اونچے پیمانے کا مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کو سیلری جو مہینے کی ملتی ہے وہ آج کے زمانے میں کہتے ہیں ہینڈسم سیلری ملتی ہے، بڑی خوبصورت سیلری ملتی ہے۔ تو نام اس کو مختلف دیا گیا ہے، لیکن کسی زمانے میں لوگ اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ جو سورس آف انکم ہے چار، پہلے آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں سب سے زیادہ جو نیچا درجہ تھا نا، وہ اسی کا تھا، اجرت کا، یعنی آدمی اپنی صلاحیت کو کسی کے حوالے کرے، یا اپنی قوت کو، صلاحیت نہیں بھی ہوتی ہے تو صرف جو اس کو طاقت اللہ نے دی ہے نا، اسی طاقت کا استعمال، جو مزدوری کرتے ہیں نا، بالکل جن کے پاس کوئی صلاحیت ہے، صرف مزدوری کرنا ہوتا ہے، تو ان کو اپنی طاقت کو کسی کے پاس، جو اسی سے دوسرا آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کو اجرت دیتا ہے۔ تو یہ چار طریقے پہلے پیش کر دوں آپ کے سامنے، اسی سے جڑے ہوئے ہیں یہ سب، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ چاروں طریقے میں بہتر طریقہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے علماء نے کافی بحث کر رکھی ہے
कि सबसे बेहतर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो पहला जो है तरीका इस सिलसिले में, वो जो कहलाता है वो ज़राअत का है, खेती का है। जमीन हो आदमी के पास, खेती करे, और उस खेती के जरिए से उसको इनकम होती है। तो किसी जमाने में ये ज़राअत का पेशा यानी खेती करना, और खेती से कोई चीज खेती करके उगाना, और फिर उससे अपनी रोजी रोटी चलाना, अपने घर का खर्चा चलाना, इसको बहुत ही यानी बाज जो है उलमा ने इसको लिखा है कि ये सबसे ऊंचा लेवल है ये रोजी रोटी का। और किस लिहाज से कहते हैं, इसमें तवक्कुल सबसे ज्यादा है अल्लाह ताला पर। और बाद लोगों ने इस लिहाज से भी लिया है कि जब आदमी खेती करता है, खेती करने में ये जो दरख्त उगाते हैं ना, जो बाग जो है जो होते हैं, वो भी उसमें शामिल है। तो उसके जरिए से जब फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, या जो खेती होती है, तो परिंदे खाते हैं। ये परिंदे जो चुग लेते हैं, खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं, चर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये सब जो है उस खेती करने वाले के हक में सदका होगा, ये गोया कि उसने सदका किया है, उसको उसका अजर मिलेगा। और इसमें बारिश सही टाइम पर नाजिल हो, पूरा तवक्कुल अल्लाह पर। पहले तो ज्यादा इसी पर चलता था, अब तो खैर लोगों ने अपने तौर पर खेतों की सिंचाई वगैरह का इंतजाम कर रखा है, खेतों को पानी वगैरह देने का इंतजाम कर रखा है। तो उतना नहीं, लेकिन पहले जब ये सब सिस्टम नहीं थे तो पूरे जो है वो अल्लाह भरोसे ही उनका पूरा काम होता था। तो कहते हैं इसमें तवक्कुल बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको लोग बहुत बेहतर सोर्स ऑफ इनकम समझते थे। हो सकता है किसी जमाने में ये बहुत अच्छा रहा हो सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से, और उस जमाने में जो दूसरे सोर्सेस थे उसमें ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, तो ये इस लिहाज से ये बहुत अच्छा सोर्स माना जाता रहा हो। दूसरी जो है शक्ल होती है तिजारत की। तिजारत जो इसके मसाइल, आपको खरीदना बेचना और इसके जरिए से प्रॉफिट कमाना, ये जो है उसकी दूसरी शक्ल होती थी। तो ये दूसरी शक्ल जो प्रॉफिट कमाने की थी तिजारत के जरिए से, इसको भी बाज जो है अहले इल्म ने इसको कहा कि सबसे ऊंचा लेवल है इसका, यानी सोर्स ऑफ इनकम में सबसे अफजल यही है, बाज लोगों ने ये कहा है। और आज भी बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि तिजारत करता है आदमी तो उसमें वो किसी का नौकर नहीं होता, वो उजरत वाले में नौकर वाला तस्वुर आता है असल में। तो किसी का नौकर नहीं होता है, अपना मालिक होता है। इस लिहाज से उसमें उसकी इज्जत है, उसका इज्जत नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी, वो बहुत ज्यादा माने रखती है। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे भी आज के जमाने में तिजारत से लोग प्रॉफिट भी बहुत कमाते हैं। अगर बड़ी तिजारत हो तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है, छोटी मोटी हो तो बड़ा छोटा मोटा फायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत किया है, उसके लिहाज से भी बाज लोग कहते हैं कि यह अफजल है और ये बेहतर जो है जरिया है सोर्स का। तीसरी जो अब ये तीन, हाँ तीसरा जो है, दो हो गए आपके सामने, एक ज़राअत का खेती का, दूसरा तिजारत का, और तीसरा ये इंडस्ट्री जिसे आप कहते हैं आज के ज़माने में, मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंडस्ट्री लगाएं और उसमें आप सामान तैयार करें, जिसको आप सनाआ कहते हैं, अरबी में सनाआ कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है आप इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। और आज के दौर में सबसे ज्यादा कमाने के लिहाज से आप कहेंगे तो सबसे ज्यादा जो जहां पे आदमी के कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो यही फील्ड है जिसको इंडस्ट्री जो है के बारे में, यानी इंडस्ट्री वाली फील्ड कहा जाता है। और लोग इसी के बाद तिजारत जुड़ती है इसे। तिजारत जो है ना खेती से भी जुड़ी हुई है। जो किसान का माल होता है वो ताजिर खरीदता है, वो बेचता है।
इसी तरह से इंडस्ट्री का भी मामला होता है। एक आदमी एक सामान तैयार करता है ना, तो उसकी मार्केटिंग तो ये ताजिर लोग ही ना पूरी करते हैं फिर। तो ताजिरों के जरिए से वो बाजार में चीज बिकती है, और उसके बाद वो लोग भी उससे नफा कमाते हैं, और जो इंडस्ट्री का मालिक होता है उसके अपने नफे होते हैं, उसका अपना फायदा होता है बहरहाल सामान तैयार करने में। तो ये भी एक बड़ा जरिया। शुरू जमाने में आप देखेंगे, पहले जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, तो उस वक्त इस यानी मैन्युफैक्चरिंग से कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी, और जो हाथ से चीजें बनाई जाती थी मार्केट में उसकी वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं होती थी, और बहुत महंगी चीजें नहीं बिकती थी। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी तारीफ की है हदीसों में, और दाऊद अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश की है कि दाऊद अलैहिस्सलाम वो अपने हाथ से यानी अपनी कारीगरी से वो जो कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो तो उसी से वो कमाते थे, और वही वो रोजी रोटी का उनके जरिया था। और उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सबसे अफजल है, यानी सबसे बेहतर जो है जरिए माश या सोर्स ऑफ इनकम कह लीजिए आज की जबान में यह है। तो पहले कोई इतना ज्यादा इसको अहमियत नहीं हासिल थी, लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज में वो सनती इनकलाब आया, अरबी में उसको कहते हैं असौरतुस सनाइयतु, सनती इनकलाब। सनती इनकलाब का मतलब क्या है? यानी वो इंडस्ट्री का एक जो है एक दौड़ शुरू हो गई, और मुख्तलिफ मशीनें तैयार करना, उनके जरिए से मुख्तलिफ सामान तैयार करना, एक से एक सामान तैयार करना। जब ये दौड़ दुनिया में शुरू हुई, तो इस जो है इंडस्ट्री ने दूसरी तमाम चीजों को पीछे छोड़ दिया। और अब इसके बाद क्या हो गया कि सबसे ज्यादा इसी को अहमियत दी जाने लगी, और जो पैसा सबसे ज्यादा कमाते हैं वो जिनके पास इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा होती है, और वो मुल्क इक्तिसादी लिहाज से, फाइनेंस फाइनेंस के लिहाज से जो है फाइनेंशियल बहुत मजबूत माना जाता है, जिसके पास अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है। वो खेती का जमाना गया, खेती करने वाले मुल्क गरीब मुल्कों में होते शुमार किए जाते हैं, और जिन मुल्कों में इंडस्ट्री ज्यादा होती है वो मालदार मुल्कों में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि ये एक जो है इनकलाब था जो दुनिया के अंदर आ गया। तो यहाँ से इंडस्ट्री की अहमियत, अगर मुसलमान इस चीज को समझते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही इसको सबसे बेहतर करार दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इनकी तवज्जो तो सब बाद में आई, जब यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, और इधर जापान, चाइना, इन सब लोगों ने जो है इंडस्ट्री पर पूरे तरीके से अपना कब्जा जमा लिया। तो हम मुसलमानों के हाथ में जो पैसे आए, हम सिर्फ उनसे सामान खरीदते हैं, हमारी हैसियत एक कंज्यूमर की होती है। और हमने अगर कभी इंडस्ट्री लगाई भी तो उन्हीं की मदद से लगाते हैं, या कह लीजिए कि वही लोग आकर के हमारे मुल्कों में वो इंडस्ट्री हमको लगा करके देते हैं, और असल उसके चलाने वाले वही होते हैं, और उसका फायदा भी वो हासिल करते हैं। तो ये एक सोर्स था बहरहाल, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा आमदनी दे रहा है, इनकम दे रहा है। अब ये आखिरी है जो हमारा असल में दर्स है, वो है कि जो ये सब कुछ नहीं है, आदमी के पास लैंड नहीं है, खेती करने के लिए, बाग लगाने के लिए लैंड की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, वो नहीं कर सकता। तो अब जाहिर सी बात है कि अब जब वो खेती नहीं कर सकता, तिजारत के लिए या तो उसके पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है, उसकी काबिलियत नहीं है, या कह लीजिए कि उतना पैसा नहीं है कि वो तिजारत कोई कर सके, तो उसके लिए भी उसको चाहिए ना कुछ। इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आज के दौर में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उस पे तो बहुत ज्यादा फिर जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है।
तो वो भी नहीं है जिसके पास, तो अब वो क्या करेगा? अब ये आखिरी ऑप्शन होता था कि वो मजदूरी करे, उजरत, यानी इन्हीं लोगों को वो अपनी सलाहियत क्या करता है, दे देता है, अपनी कुव्वत दे देता है, कि वो उसकी कुव्वत से फायदा उठाएंगे और उसके बदले में उसे उजरत दे देंगे, मजदूरी दे देंगे, जो एक तरह से किराया ही है उसकी सलाहियत का, लेकिन वो किराए का नाम नहीं दिया जाता है। ये मैंने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन है, ये याद रखिएगा। ये जब आदमी कुछ नहीं कर सकता तो अब उसके सामने ये चीज होती है। अब ये चीज कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही बुरी चीज है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है कि आदमी अपनी मेहनत से दो पैसा जो कमाएगा, पसीने की कमाई होगी, उससे वो खाएगा, हलाल रोजी कमाएगा और खाएगा, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इस बात से कि लोगों के सामने हाथ फैलाए, क्योंकि उसके पास न जमीन है कि खेती करेगा, न पैसा है कि तिजारत करेगा, और न इतनी दौलत है कि वो इन्वेस्ट करके कोई फैक्ट्री वगैरह में इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग का काम करे। उसके पास कुछ नहीं है, तो फिर हलाल रोजी कमाने का यही एक जरिया उसके पास बचता है। अंबिया किराम ने भी ये काम किया है, इसीलिए इसको हम ऐसा पेश करने का मकसद ये नहीं है कि ये कोई बहुत बुरी चीज है, नहीं। मैं ये जो है चारों के अंदर जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने में ये लास्ट ऑप्शन होता है। अंबिया किराम ने जो किया है वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये काम इसलिए लिया है कि उनको एक तजर्बा हो, सब्र, कैसे किसी कौम की लीडरी जो है करनी है और किसी कौम को कैसे लेकर के चलना है, उसके पीछे उनको बड़े सब्र की जरूरत होती है। तो इसीलिए अंबिया किराम को नबूवत से पहले बकरियां चराने का काम होता था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्के में शुरू में बकरियां चराई हैं, वो पहले की बात है, तिजारत तो आप बाद में कर रहे थे, लेकिन शुरू में बकरियां चराई हैं आपने। और अला करारी तक का लफ्ज आता है कि कीरात, अगर हम उसको मजदूरी माने, तो उस मजदूरी पर बाज लोग उसको कहते हैं कि नहीं, ये जगह का नाम था, उस जगह पर आप जो है बकरियां चराया करते थे। बहरहाल जो भी हो, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मूसा अलैहिस्सलाम वो भी उलुल अज़्म रसूलों में से एक बहुत ही जो है माने हुए रसूल हैं, वो पांच बड़े बड़े रसूलों में से एक है ना, उन्होंने भी उजरत पर काम किया है। वो आप जानते हैं कि जब वो गए और वो दो लड़कियों का मसला हुआ, और उसके बाद उनमें से किसी एक से शादी की बात हुई, तो उस शादी के अंदर ये मसला आया कि आप 8 साल तक यहाँ पर उजरत पर काम करेंगे, और अगर 10 साल कर लें तो ये और बेहतर है। तो उन्होंने किया, वहां 10 साल तक उन्होंने काम किया है वहां पर, फिर वहां से वो चले। तो ये अच्छी चीज है कि आदमी को करना पड़ता है। मैं आपको जो है इस सिलसिले में कोई ये नहीं करना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं उजरत पर काम कर रहे हैं, कोई सैलरी बेस पर काम कर रहे हैं, तो आप उसे छोड़ें और जो है तिजारत में लगें या जो है कोई फैक्ट्री लगाएं। मैं आपको ऐसा कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये लास्ट ऑप्शन होता है। हर आदमी तिजारत नहीं कर सकता। खेती के लिए तो खैर लैंड चाहिए, तो लैंड नहीं है तो उसको छोड़िए, वो मसला ही नहीं आता। और वैसे भी जो के पास जो है जमीनें हैं, वो अपनी खेतियां छोड़ छोड़ करके शहरों में आकर के मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे तो उनका खर्चा घर का नहीं निकलता है। वो बेचारे क्या करेंगे? तो ये जो है शक्ल पाई जा रही है आज के जमाने में कि अब आदमी, हर कोई तिजारत नहीं कर सकता। बाज हमारे भाइयों ने सोचा कि चलो हम छोड़ देंगे सारा काम और तिजारत करेंगे। अब काम शुरू किया, कुछ पैसे जमा किए, कुछ लोगों ने जो है गल्फ कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में काम करके पैसे कमाए और ला करके यहाँ तिजारत खुद शुरू किया। लेकिन उनकी तिजारत फेल हो गई, क्योंकि उनको उसका तजुर्बा नहीं था। हर आदमी हर फील्ड के लिए मुनासिब नहीं होता है, तो हर कोई तिजारत नहीं कर सकता।
तो ये तिजारत के अंदर एक मामला होता है, एक परेशानी होती है जो है। तो जो उसके लिए मुनासिब है और जिनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है ना उसकी, उनको अपना उस जाना चाहिए उस फील्ड में। छोटे से ही शुरू करें, होते होते आदमी बड़ा ताजिर बन जाता है, बहुत बड़ा मालदार बन जाता है। हर जगह पे ये चीज होती है। तो अब ये जो है सैलरी का मसला या उजरत का मसला यहीं से आता है। इसको चौथे नंबर पे लोगों ने रखा है सोर्स ऑफ इनकम में। जो आज के दौर में आप देखें तो दुनिया के जो बड़े बड़े लोग माने जाते हैं, अब हमारे इस मुल्क में जो सबसे क्या कहते हैं, जो ना पहला जो शहरी होता है ना, फर्स्ट सिटीजन जो है, जो यहाँ का जो है क्या कहते हैं उसको, आप जो है प्रेसिडेंट होता है, वो भी सैलरी लेता है। प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी भी सैलरी होती है। बहुत सारी उनको फैसिलिटीज होती है, उसके साथ सैलरी होती है। तो अभी तो ये चीज ऐसी हो गई है कि बड़े बड़े लोग भी क्या है, सैलरी पर। लेकिन बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके लिए आजकल हासिल करनी पड़ती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद आदमी कोई ऐसा उसको मनसब मिलता है जहां उसे एक बड़ी हैंडसम सैलरी मिलती है, और उसको बड़ी इज्जत वहां दी जाती है, और उसका एक मकाम और मर्तबा होता है। सारी चीजें हैं, लेकिन होता तो नौकर है, क्योंकि वो लेता है सैलरी। अपनी जगह पर ये चीज होती है ये। तो आज के दौर में ये चीज बहुत ज्यादा हो गई। लोग बड़ी 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 मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में, पढ़ाई के दौर में, ताकि वो कोई नौकरी पा सके। नौकरी हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें करनी पड़ रही है, और होता फिर भी नौकर है। एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है, जिसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दे रखी है तिजारत के ताल्लुक से या फैक्ट्री को चलाने के ताल्लुक से, वो अपनी फैक्ट्री चला करके क्या कहता है, हम जो है बड़ी बड़ी जो डिग्रियां जिनके पास है ना, ये ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी क्या हो, अपनी जगह पर कोई पढ़ा लिखा भी ना हो, कोई खास पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो बड़े बड़े पढ़े लिखों को अपने पास नौकरी देता है, और ये उसके पास आराम से काम करते हैं और सैलरी लेते हैं। तो है तो ये चीज फिर भी क्या, कि वो उजरत पर काम करता है। ये तस्वुर तो कहीं ना कहीं रहेगा। अब हम ये जो है, इंसान जो उजरत पे काम करता है, उसके उजरत पर काम करने की कई शक्लें होती हैं। उन शक्लों को पहले पेश कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह इससे जुड़े हुए बस एक ही दो हदीसें हैं असल में जुड़ी हुई, कोई ज्यादा मसला नहीं है इसका शरीयत के अंदर। क्योंकि इन सब चीजों में असल इबाहत होती है, यानी वो चीजें जायज हैं। कहीं कोई हराम चीज ना आए बीच में, तो वो चीज क्या है, जायज ही होती है। तो एक तो डेली वेज कहते हैं उसको, यानी रोज जितने देर काम करेंगे उसका पैसा मिल जाएगा, इसको डेली वेज कहते हैं। एक बहुत सारे कामों में ऐसे ही होता है डेली, जैसे मजदूर वगैरह काम के लिए लेते हैं, हायर करते हैं, जो अपनी ताकत सिर्फ वहां पर उनको इस्तेमाल करनी होती है, या बाज के पास हुनर भी होता है उसमें से, लेकिन वो रोज के लिहाज से वो आपसे मजदूरी लेते हैं। तो इसको डेली वेज कहते हैं। तो एक उजरत का तरीका ये है। उजरत का दूसरा ये है कि कभी हफ्ते के लिहाज से वो उनको सैलरी, या कह लीजिए कि उजरत दी जाती है। एक हफ्ते में काम किया, तो उसको जो है हफ्ते का एक दिन होता है, उस दिन मुतय्यन होता है, उस दिन उसको जो है उसकी मजदूरी दे दी जाती है। इन सब में क्या होता है, आपको काम के बदले में या वक्त के बदले में आपको उजरत दी जाती है। डेली दी जाए या हफ्ते में एक दिन दी जाए, लेकिन ये डेली जो है वेज। इसमें अहम चीज क्या होती है, इसमें अहम चीज दोनों होती है, कि वक्त भी मुतय्यन होता है, कि आप इतने से इतने जो है टाइम तक काम करेंगे, और काम भी मुतय्यन रहता है कि आप ये काम करेंगे। तो उसके लिहाज से उनकी उजरत मुतय्यन होती है, उजरत उनको मिलती है। अगर वो नहीं आए, काम नहीं किया उन्होंने, तो उनको उजरत नहीं, डेली वेज में ये मामला है।
यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि जैसे आप जो है जो सैलरी बेस होता है उसमें ये है कि आपके लिए छुट्टियां होती हैं, आपके लिए बहुत सारी सहूलतें होती हैं, और आप जो है छुट्टी लेने के बावजूद भी आपको उसकी सैलरी मिल सकती है। कुछ ऐसी जो है छुट्टियां होती हैं जो सैलरी के साथ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें जो है आप सैलरी के बगैर जो है छुट्टी लेते हैं। तो मुख्तलिफ जो है उसकी शक्लें, मुख्तलिफ उसके तरीके हैं जो लोगों ने बना लिए हैं। तो ये डेली वेज वाले में ये मामला नहीं होता है, और सहूलतें भी इसमें कोई खास नहीं रहती। हाँ हाँ, कंपनियों का अपना अलग अलग हिसाब है, और जैसे जैसा काम है उसके लिहाज से वो कुछ जो है सहूलतें देती है। अब ज्यादा जो इस वक्त है वो महीने की सैलरी का काम होता है। अभी तो लोग पैकेज, एक लफ्ज अभी नया आया हुआ है इसका, कि जो है नया का मतलब यानी कुछ सालों से, बहुत पुराना नहीं है, इसको पैकेज कहते हैं अभी। यानी पर एनम कहेंगे वो, कि एक साल क्या पैकेज इनका कितना है। 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 CR है, कहते हैं वो 1 करोड़ है, जो है इस तरह के पैकेज बना दिए हैं अभी। सैलरी पैकेज हो गया। तो आपको उतनी सैलरी, यानी अब इतनी इतनी सैलरी भी मिल सकती है कि जो है आपको साल में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इससे भी ज्यादा जो है साल की सैलरी हो सकती है। इसी वजह से उनका जो स्टेटस है जरा हाई हो गया, कि नौकर तो हैं, लेकिन ये नौकर थोड़ी, इसकी शान क्या हो गई, ऊंची हो गई। इस्लामी तरीका इस सिलसिले में क्या है, दो तीन बातें हैं जो हदीसों में आई हुई है। एक चीज इसमें ये बयान की गई है कि जैसे ही जो भी उजरत है, इसके ताल्लुक से जो उसूल दिया इस्लाम ने दिया ये, और मजदूरों की बड़ी रियायत की इसमें, वो ये है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले ही दे दिया जाए। यानी जो काम कर रहा है, वो जो मेहनत की है, उसकी जो भी उजरत मुतय्यन है, उजरत देने में ताखीर न की जाए, उसको फौरी तौर पर अदा किया जाए। ये मतलब यहाँ पसीने का नहीं है, वरना हमारे बाज लोग जो है थोड़ा मजाक करते हुए क्या कहते हैं, अब तो एसी कमरों में बैठ के काम करते हैं, पसीना कहाँ होता है। तो इसलिए पसीना सूखने का मसला ही कहाँ आता है कि पसीना सूखने से पहले उनको उनकी उजरत दे दी जाए। मतलब जो इसका है ना वो ये है कि वक्त जैसे ही काम हुआ, इसको देने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। यही मतलब है उसका। तो एक तो उसूल इस्लाम ने ये दिया, और ये बड़ा ख्याल किया इस सिलसिले में मजदूरों के ताल्लुक से, उनके हक की बड़ी रियायत की है, याद रखिएगा। ये हदीसें जो है मदरसों में पढ़ी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको बड़ा ताज्जुब होगा। हमने जो काम किया है अब तक, उसके लिहाज से अपने तजर्बे की बात कह रहा हूँ, कि या जो देखा है हमने मदरसों का हाल, सबसे ज्यादा ताखीर सैलरी में अगर दुनिया में कहीं होती है तो वो मदरसों में होती है। कई कई महीने कभी कभी सैलरी नहीं मिलती है, या जो है नहीं देते हैं लोग, ऐसा पाया जाता है। और हम तो कभी ऐसे हालत से भी गुजरे हुए हैं, आपको बता रहा हूँ, कि 6 महीने तक या कुछ ऐसे ही, जो उस वक्त अभी मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे उतना बड़ा मसला नहीं था, उतना बड़ा खर्चा नहीं था। तो 6 महीने तक भी सैलरी नहीं मिली थी। तो सबसे ज्यादा ये क्या होता है कि ये भी नहीं है कि नहीं पैसे नहीं थे या नहीं, सब कुछ रहता है, लेकिन वो जो दीन के किले कहलाते हैं, वहां इस निजाम को सबसे ज्यादा जो है इसकी धज्जियां कह लीजिए कि उड़ाई जाती हैं। मुख्तलिफ जो है वो चीज दिखाने के लिए होता है। मैं वो चीजों को नहीं पेश करना चाहता आपके सामने, लेकिन एक जो हकीकत थी उसको जो है मैंने बयान कर दिया, जो इस्लाम ये सिखाता है। हमने ऐसे सुना है, मैं ये मदरसे की बात का, उसके अलावा भी जो मजदूरी पर लोग काम कराते हैं मजदूरों से,
तो मजदूर बेचारा पहले ही से वो मजदूर है, उसकी कमाई ही क्या होती है मेरे भाई, उसके घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन उनकी मजदूरियां भी लोग हड़प कर जाते हैं। अगर हड़प नहीं किए तो ताखीर करके देते हैं। इतनी ताकीद क्यों फरमाई है? ये जाहिलियत में भी होता था, पहले भी होता था, इस्लाम से पहले भी होता था, लेकिन इस्लाम ने बड़ी ताकीद फरमाई कि इनकी मजदूरी उनके वक्त पर फौरी तौर पर अदा कर दी जाए। आज लेकिन वो चीज मैंने कहा कि फिर से वो जाहिलियत है कि लोग मजदूरों को बहुत परेशान करते हैं। आप जिनकी बहुत ज्यादा सैलरियां होती है ना, वो कंपनियां, वो तो जो है इस्लामी उसूलों पर चल रही है। हमारे भाई जब हमसे ये जिक्र करते हैं, जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं, ये कंपनियां मुख्तलिफ मुल्कों की हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्हें कहा जाता है, और वो उनके जो मालिक हैं कंपनियों के, वो जो है नॉन मुस्लिम होते हैं। वो जब जिक्र करते हैं कंपनियों के ताल्लुक से और किस तरह से उनको टाइम पर सैलरी मिलती है, और किस तरह से और भी बहुत सी चीजों का वो लोग ख्याल करते हैं अपने एम्प्लाई को लेकर के, उनको जो सहूलतें देते हैं, मेरे भाइयों, ये सारी चीजें आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जो हमारे दीनी संस्थान हैं, दीनी जगहें हैं, जो दीन के किले कहलाते हैं, वहां ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पाई जाती। सैलरी में लेट करना तो एक बहुत आम आम सी बात है, बहुत बड़ा एक मामूल सी चीज है वो। उसके अलावा भी जो उसूल और जाब्ते होते हैं ना, अभी सैलरी के लिए एक उसूल जाब्ता क्या होता है कि अगर उन्हें हर साल के अंदर एक इंक्रीमेंट का रहता है, उनके यहाँ बोनस का सिस्टम होता है, वो सारी चीजें होती हैं। हम लोगों का तो हाल ये होता है कि अभी कई कई साल गुजर गए, कोई इंक्रीमेंट का कोई पता ही नहीं रहता, कोई चीज ही नहीं रहती, इसके बारे में सोचते ही नहीं कभी जो है। कि जब महंगाई, जब सरकारी, इसमें क्या, अब ये खुद हमारे इस मुल्क में जो गवर्नमेंट अब एम्प्लॉय होते हैं, उनका ये होता है कि जैसे जो है आपकी ये बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, उसी लिहाज से वो अपनी जो है सैलरी को महंगाई भत्ता के नाम से, यानी कह लीजिए कि वो इंक्रीमेंट कह लीजिए, भत्ता का मतलब, वो जो है उसको बढ़ाते हैं। ये उस इंक्रीमेंट के अलावा होता है जो उनको ईयरली जो है इंक्रीमेंट मिलता है। हमारा ये हाल होता है, हम जो काम करते हैं, कि वो तो छोड़ो कि जो है वो महंगाई क्या है उसका ख्याल करते हुए तनख्वाह को बढ़ाया जाए, वो तो खैर दूर की बात है। ये जो ईयरली होना चाहिए लाजमी तौर पर इंक्रीमेंट, वो भी नहीं होता है, और वैसे ही चलता रहता है। तो ये सब जो है हालत, जिस इस्लाम ने सिखाया था, और दूसरी कौमों ने इस्लाम से इसको सीखा, और उन्होंने अपने इम्प्लाइज को अपने यहाँ अहमियत दी, उनको इज्जत दी, और उनके साथ जो है ये मामला जो है इस तरह से किया कि जहां तक हो सके उनको सहूलतें दी जाएं, और उनको एक आज़ाद माहौल में काम करने दिया जाए, खुशी खुशी काम करने दिया जाए। देखिए, याद रखिएगा, जब इंसान दिल से काम करता है, अपनी खुशी से काम करता है, तो ही जाकर के वो काम उम्दा होता है, अच्छा होता है। और उसके लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं कि आप उसकी चीजों का ख्याल रखें ये। लेकिन नहीं, मतलब ये कि एक बात बता रहा हूं आपको कि ये ऐसे ही है पूरा, कई कई साल हो जाते हैं मेरे भाइयों, और इंक्रीमेंट का कोई पता नहीं होता। ये उस इंक्रीमेंट की बात करता हूं जो बहुत मामूली सा साल में, जो बिल्कुल जो है ये सैलरी बेस जो होते हैं, उसमें ये चीज है, अंडरस्टूड है कि वो इंक्रीमेंट साल साल में मिलेगा उनको। वो जबानी बात ना हो तो भी जो है वो बहुत मामूली सा हिस्सा होता है वो। उसके अलावा ये जो है कॉमन सेंस है कि जब कोई शख्स आपके यहाँ काम करता है, तो महंगाई के लिहाज से अब उसकी जरूरत बढ़ चुकी होती है, और उसमें इंक्रीमेंट जो है जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप सुकून के साथ, वो शख्स आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। इस्लाम तो यही सिखाता था, और इस्लाम यही सिखाता है
लोगों ने उसको अपनाया, हमने खुद छोड़ दिया उसको, कोई एतबार नहीं होता इसका। तो ये एक चीज थी जो आपको पेश कर रहा था कि हमारे इस्लामी उसूलों में क्या है इसमें, कि सबसे पहली चीज कि उनको टाइम पर उजरत मिलनी चाहिए, जो काम आप ले रहे हैं उसके लिहाज से उनकी उजरत उसी लिहाज से मुतय्यन भी होनी चाहिए। दुनिया ने उसको अपनाया और वो कामों के लिहाज से उजरत देते हैं, लेकिन हम गाय बैल सबको एक ही जो है इससे हाँक देते हैं। कुछ भी जो है इस सिलसिले में जो ख्याल होना चाहिए, कोई एतबार नहीं होता है, कोई चीज नहीं होती है। आप देखेंगे कहीं पर आप काम करते हो, जो दूसरी कंपनियां हैं, ये हम अपनी भाइयों से ही सुनते हैं, इसीलिए ये बातें कह रहे हैं। आप लोग को भी जो है, अगर कहीं पर काम कर रहे होंगे तो आपके साथ भी यही मामला होगा, कि आप देखते हैं, जब हम सुनते हैं उनकी जबान से कि कैसे वो लोग जो है हर चीज में सहूलतें देते हैं, यहाँ तक कि कैब का इंतजाम कर देंगे, आने जाने की सहूलत आपको जो है, पिकअप एंड ड्रॉप जो है, सारी चीजें सारी सहूलतें दे देते हैं। हमारा क्या होता है, हम तो पैदल चल के जाते हैं। हमको जो है कहीं पे जो काम करते हैं मदरसों में, तो कैसे जाते हैं, हम पैदल चल के जाते हैं। ये कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी बात है कि पैदल चल के जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कभी ये ख्याल नहीं आता कि आदमी आएगा जाएगा कैसे, उसके बारे में कोई सोच। कभी कहीं जाना होता है, कहीं कोई प्रोग्राम रख दिया है, उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए होता है कि भाई जो काम करते हैं उनको भी शिरकत करना है, तो लेकिन वो आदमी जाएगा कैसे वहां, वहां से आएगा कैसे, उसके बारे में सोच नहीं होती है। तो ये है वो कि अपने एम्प्लाई के लिए उनके फैसिलिटीज, जो आज की जबान में आप कहते हैं, जैसे हमने सुना अपने भाइयों से, जैसे कंपनियां जो है इसका ख्याल करती हैं, काश हमारे जो दीनी इदारे कहलाते हैं वो इसकी तरफ तवज्जो देते जो है। तो ये एक चीज थी जो जो है आज के दौर की बात है। ये इस्लाम क्या सिखाता है, उसका ख्याल पूरा होना चाहिए। यहां तक कहा, रमजान के महीने में रोजेदार है तो थोड़ा उसके काम को हल्का कर दो। और ये भी बाज मर्तबा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा, वो गुलाम था किसी जो है सहाबी का, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजामा किया। हिजामा ये कपिंग जो आजकल आप कहते हैं, तो आपने उसको उजरत के तौर पर कुछ दिया बाद में, और साथ में ये भी कहा कि उसके जो मालिक है ना उससे बात करेगा कि जरा इसके काम को हल्का कर दे। काम भी किसी शख्स से उतना ही लिया जा सकता है ना जितनी उसके पास कैपेसिटी होती है, काम करने की ताकत होती है। आप किसी की सलाहियत का मतलब ये था कि आप उसको इतना चूसे, ये इस्लाम इसको नहीं कहता कि आप उसके जो है निचोड़ लें बिल्कुल जो है, नहीं। काम भी लेना है तो उसकी अपनी ताकत के लिहाज से काम लेना है आपको, और उसी के लिहाज से आपको जो है मामलात उस सिलसिले में करने हैं। एक और जो है चीज इस सिलसिले की, कि जब काम ये जो बात जो है हदीसों में जो इस सिलसिले में कुछ हिदायत आई है, मैं वो पेश कर रहा हूं आपके सामने, कि काम जो है जब भी कहीं पे करना है या किसी को हायर करना है उजरत पर, तो उसे मुतय्यन कर लेना चाहिए कि उजरत कितनी देंगे। हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे तिजारत में ये बात थी कि जो बाय है बेचने वाला, जो मुश्तरी है खरीदने वाला, इनको अपनी जो भी चीज है उसके ताल्लुक से जो बातें क्लियर अंदाज से पेश करें, कोई चीज छुपाएं नहीं। उसी तरह से यहां पर भी मामला है। यहाँ इम्प्लायर और इम्प्लाई जो है, दोनों को जरूरी है कि अपने मामले में बिल्कुल क्लियर हो। ये नहीं कि इम्प्लायर जो है वो कुछ बातें ऐसे ही छुपा लिया, वो बाद में काम करने के दौरान मालूम हुआ कि नहीं भाई यहाँ तो ये भी करना पड़ता है, ये भी होगा, या इम्प्लाई ने कोई इस तरह की चीज की। तो ऐसा नहीं है, शरीयत का मामला बहुत क्लियर है, इस्लाम में ये बहुत क्लियर है कि हर चीज आपको वाज़ेह तौर पर बोल देना चाहिए। अब एक अच्छी चीज ये है कि बाकायदा एग्रीमेंट पेपर बनता है और दोनों को एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है।
एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉई को भी। और इसकी बड़ी कोशिश की गई कि उसको बैलेंस रखा जाए, जो उसमें कंडीशंस वगैरह होती हैं उसे बैलेंस रखा जाए। जो दुनिया की कंपनियां हैं, जहां दुनिया के हुसूल के लिए काम होते हैं, वहां तो इन सब चीजों का पूरा लिहाज किया जाता है। अफसोस ये है कि हमारे दीनी इदारों में इसका नहीं ये लिहाज होता है। बात जगहों पे होता होगा, लेकिन आम तरीके से नहीं होता है। यहाँ पर वो चीज जो है, जो बैलेंस कहते हैं ना, वो चीज नहीं रखते। हमेशा क्या होता है कि जो इम्प्लाई है, यानी जो काम जिनसे लिया जाता है, जिनको काम पे रखा जाता है ना, वो जो भी निजाम बनाएंगे वो सारा निजाम इम्प्लायर के लिहाज से रहता है, इम्प्लाई के लिहाज से नहीं रहता। और ये बेचारे बहरहाल चूंकि कोर्ट वगैरह में जाते नहीं है, अगर ये कोर्ट में चले जाएं तो ये अच्छे बुरे फंसेंगे ये लोग बाद में। लेकिन जाते नहीं है, बस वो क्या है, अब वही दीन का जो है लेबल रहता है ना, उसी लेबल की वजह से जाते भी नहीं कहीं। तो सारी चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं, ऐसे ही मामलात होते रहते हैं। तो ये चीजें जो है पेश कर रहा हूं, मैं निजाम के लिहाज से पेश कर रहा हूं कि इस्लाम यही सिखाता है कि आपको उजरत क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, क्या होगा, छुट्टियां क्या होंगी, और जो है कितने दिन की छुट्टी आप जो है बीमारी की ले सकते हैं। अगर छुट्टी आपने नहीं लिया तो क्या उसको आपको डबल सैलरी दी जाएगी। जो भी चीजें हैं ना, बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये चीजें होती हैं बहुत क्लियर अंदाज में। कहाँ होती हैं? जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, जो लोगों को हायर करती हैं अपने यहाँ, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए वो हर तरह की सहूलत भी देते हैं। ये सब चीजें लिखी हुई होती हैं। निजाम के लिहाज से ये भी रहता है उनके यहाँ, बैलेंस का मतलब मैं कह रहा था, बैलेंस जो है ये भी होता है कि अगर आपको छोड़ना है तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा होता है कंपनियों का अलग अलग, आप उसके पहले इस्तीफा देने से पहले आप बता देंगे 3 महीना पहले कि आप रिजाइन करने वाले हैं, ताकि वो दूसरे आदमी को रख ले। इसी तरह से तो ये एक हुआ। अब ये एक तरफ तो हो गया, ये चीज तो आप रखेंगे जो है मदरसों में पाएंगे आप, लेकिन अब बैलेंस बैलेंस ये है कि अगर जो है वो सामने वाला भी आपको निकालना चाहता है ना, तो उसको भी सेम यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप भी अपनी कोई जगह देख ले। उस दौरान की उनको सैलरी देना भी जरूरी होता है। इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं होती है कि जो है वो सैलरी ना जो है काटें या कुछ करें। जो आप सैलरी कब काट सकते हैं, कब नहीं काट सकते, वो सारी चीजें बहुत क्लियर अंदाज से पूरा एग्रीमेंट पेपर के तौर पर वो चीजें जो है साइन होनी चाहिए, और दोनों तरफ से साइन होना चाहिए, और उसका पूरा ख्याल होना चाहिए। ड्यूटी टाइमिंग क्या है, काम क्या है, और काम भी जरूरी होता है कि मुतय्यन रहे। आप जो है, मेरी एक सलाहियत है, मैं वो काम कर सकता हूं, आप मुझसे कोई और काम लेना चाहेंगे तो मैं कैसे करूंगा? मैंने जिस काम के लिए आप अपने आप को आपके यहाँ पेश किया है, वही काम आप कहेंगे तो मैं करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। कहेंगे नहीं मेरे पास ये काम नहीं है अभी फिलहाल, आप फालतू हैं, तो टाइम तो है ना हमारा ये, तो जरा ये काम कर दीजिए, तो मैं वो काम भी करना शुरू करूं, तो वैसा नहीं होता। हर चीज की तायीन होनी चाहिए, इस्लाम हमें ये सिखाता है, ताकि बाद में किसी तरह का आपस में झगड़े का कोई मामला ना हो। इस सिलसिले की एक चीज ये होती है, सैलरी हमने कहा कि मुतय्यन, या उजरत कह लीजिए, वो मुतय्यन होना चाहिए। कभी इसमें ये रख दिया जाता है कि खाने का, यानी आपको रहने की जगह दी जाएगी, खाने का इंतजाम भी आपके लिए रहेगा, रहने और खाने की सहूलत के साथ आपको इतना जो है, इतनी माहाना सैलरी या मंथली आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। तो क्या ये तरीका सही है? इस पर एक सवाल उठता है, क्योंकि यहाँ जो सैलरी का हिस्सा बना दिया गया, किस चीज को सैलरी का हिस्सा बना दिया गया? उसके खाने को, उसके रहने को सैलरी का हिस्सा बना दिया गया, वो भी उसकी सैलरी में ही शुमार किया जाएगा।
यही है, हमारे बहुत सारे भाई लोग नहीं समझते हैं इस चीज को, तो उनको परेशानियां होती हैं। ये थोड़े से अब मसाइल होंगे जिसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आपकी जरूरत की चीज है ये। तो यहाँ थोड़ा सा बाज लोगों को ये इश्काल हो जाता है, ये डाउट आ जाता है कि अब वो आदमी कितना खाना खाएगा, ये की तायीन कैसे करेंगे आप? या ये कि जो खाने की क्वालिटी उसको दी जाएगी, वो क्वालिटी क्या, उसको मेंशन करने का कि कौन सी क्वालिटी उसको खाने की। भाई खाना तो दिया जाएगा, लेकिन कोई बहुत ही जो है घटिया किस्म का खाना देना शुरू कर दे। घटिया से मुराद मेरा मतलब ये है कि ऐसा खाना कि वो आदमी नहीं खा सकता उसे। तो आप सहूलत तो दिए हुए हैं, लेकिन उसे बाहर खाना पड़ता है। वो मदरसे में जो खाना बन रहा है वो नहीं खा पा रहा है, वो नहीं खा सकता उसे, वो बाहर खा रहा है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। तो अब ये सहूलत थी, इसकी वजह से इसको जो है उजरत में शुमार किया गया था। और हर आदमी एक बराबर नहीं खाता ना, बस लोग ज्यादा खाते हैं, बाज लोग थोड़ा खाते हैं। तो ये मुतय्यन कैसे हुआ, यहाँ एक थोड़ा इश्काल कहा आपसे कि आता है। लेकिन ये याद रखिए कि इतना शरीयत में क्या है, कहते हैं कि चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं। बस वो जो भी खाता हो, जितना भी खाता हो, जब ये तय हो गया है कि उसके साथ खाना भी रहेगा और उसकी सैलरी का वो हिस्सा है, तो वो जितना भी खाता हो वो तो देना पड़ेगा उसे। अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है खाने के ताल्लुक से कि कोई जमीन व आसमान का फर्क हो जाएगा। पिछले जमाने में होता था, बड़े किस्से मशहूर हैं इसके। मैं तो तबीयत बेचारा वो किस्से आ रहे थे कि सुनाऊं आपको कि कुछ लोगों के साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है पहले। लेकिन अभी थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। इसको आप बस खाना दिया जाएगा, ये तायीन है, ये काफी है। क्वालिटी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि बहुत ही लो दर्जे का ना हो जिसकी वजह से उसको परेशानी हो। रहने की जगह का भी वही सेम मामला है कि रहने के लिए कह दिया, ठीक है। अब वो जगह जो है, अब एक जो होता है ना कि दरमियानी किस्म की जो होती है, बहुत ही जो है लो दर्जे की या बहुत ही हाई, उसको छोड़ करके दरमियानी जो दर्जे की होती है उस पर जो है उसका हिसाब चलता है। या जैसा उर्फ होता है, उर्फ कहते हैं उसको, कि इस तरह की नौकरी में आदमी अगर प्रोवाइड करता है ये एकोमोडेशन, तो किस तरह का होता है, तो उसके लिहाज से वो चीज हो सकती है, वो फिर भी मुतय्यन ही माना जाएगा, इसमें कोई हरज नहीं है। शरीयत के लिहाज से कोई मसला नहीं है। तो ये तायीन काफी हो जाती है। उसमें खाना कितना देंगे ये मुतय्यन करने की जरूरत नहीं, बस उसके खाना जितना भी वो खाता है वो खाएगा जो है। एक और बात जो इस सिलसिले की इसी से जुड़ी हुई है, जो आजकल हमारे भाइयों के मसाइल होते हैं, कि बहुत सारे इसमें पीएफ कटते हैं कंपनियों में। तो पीएफ में ये होता है कि कुछ पैसा तो इनकी सैलरी से जाता है, और कुछ जो है कंपनी खुद भी पे करती है, और इनके खाते में वो पीएफ जमा होता है। एक तरह की ये सहूलत है, वो उनकी तनख्वाह का हिस्सा है, ये भी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा। कहीं कहीं कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं अपने एम्प्लॉय को। ये सब जो है पहले से ही चीजें तय रहती हैं कि ये मिलेगा उनको, कंपनी उसको जमा करती है। तो ये भी उसकी सैलरी का ही हिस्सा है, याद रखिएगा। तो जितनी भी फैसिलिटीज के नाम पर चीजें रखी जाती हैं वो उसकी सैलरी का हिस्सा हैं। और इस लिहाज से इसके नाम से जो पैसा जमा होता है हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर, वो पैसे का मालिक असल में वही होता है, क्योंकि इसकी सैलरी का ये हिस्सा है। और इसीलिए अगरचे कि हम इसको जायज नहीं समझते हैं, लेकिन कंपनी दे रही है तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते। वो तो कंपनी का मामला है, हमें खुद लेना रहे तो हम नहीं लेंगे। तो अब वो पैसा उसी का है, याद रखिएगा। तो अगर कभी जरूरत पड़ गई, उसको इलाज कराना है, तो इसका तो इंश्योरेंस जमा हुआ है ना, यानी सैलरी इसका अपना पैसा। ठीक है, वो दूसरे पैसे नहीं लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका अपना पैसा जो है उसे तो ये ले सकता है। यानी उसके उतने उस मिकदार में तो ये इलाज करा सकता है वहां से। तो उसके लिए ये जायज है, कोई मसला नहीं, ये उसका अपना पैसा है, याद रखिए। ये सैलरी से ही जुड़ा हुआ है ये।
تو फैसिलिटीज के नाम पर जो चीजें दी जाती हैं ये सैलरी का हिस्सा होती है। बोनस जो भी दिया जाएगा वो सैलरी का हिस्सा है। लोग बहुत सवाल करते रहते हैं इसके बारे में कि क्रिसमस अभी आ रहा है तो उस पे बोनस दे रहा है, ईसाई लोग देते हैं। और अभी जो दिवाली बोनस जो है भी वो तो बहुत से लोगों को मिलता है। वो पूछते रहते हैं कि जो है क्या इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जायज। अरे भाई वो आपकी सैलरी का हिस्सा है, उस पे आप सवाल क्यों कर रहे हो खामखा में। ये जो फैसिलिटीज के नाम पर चीजें कंपनियों से आपको मिलेंगी वो सब आपकी सैलरी का हिस्सा मानी जाती हैं। और उसी लिहाज से आपको, आपकी वो एक इनकम है, आपकी आमदनी है, आपकी वो सैलरी है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कब दिया उन्होंने ये उनका अपना मामला है, आप तो उसके उससे आपका जुड़ा, आप तो जुड़े हुए नहीं है। तो अगर कहीं इस्लामी मुल्क हो और कोई इस्लामी कंपनी है, मुस्लिम जो है बेस है वो, तो उन्होंने ईद के मौके पर लोगों को बोनस दे दिया, रमजान के मौके पर दे दिया, तो क्या मतलब आप कहेंगे कि अब वो गैर मुस्लिमों के लिए जायज नहीं है? वो तो वैसा कुछ नहीं होता है मामला ये। वो उनको सैलरी में देते हैं वो बोनस के तौर पर, ये एक तरीका है इसका। और उसमें वो भी एक सहूलत है जो अपने एम्प्लाई को प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीजें उन्होंने इस्लाम से सीखी हुई हैं। हमारे लोगों ने इसे छोड़ दिया। हम लोगों को बता रहा हूँ आपको कि कोई जो है ईद रमजान आ जाए लेकिन हम लोगों को कोई, या बकरीद आ जाए, हम लोगों को किसी तरह का कोई बोनस नहीं मिलता है, कभी भी नहीं। अरे कम से कम ये सोचना चाहिए, चलो भाई बकरीद आ गई, इनको भी कुछ बोनस मिल जाए, तो इस मौके पर ये भी जो है कुर्बानी कर सकते हो। यानी एक सोच होती है ना कि जो है, जो एक इबादत है, और जो है इनके भी बाल बच्चे होंगे, उनके भी कपड़े वगैरह बनाने के मसले होंगे, चलो ईद का मौका है, इनको बोनस दे दिया जाए। तो सारी दुनिया में लोग जो है करते हैं, लेकिन अगर ये चीज नहीं होती है तो कहाँ नहीं होती है, हमारे अपने लोगों में ये चीज नहीं होती। ये बहुत जो है अजीब लगता है मुझे कि हम जो है दुनिया को जो पैगाम दिए थे, हम खुद उस पैगाम को भूले हुए हैं। खुद हम अपने इस्लाम को अपने इदारों में नाफिज नहीं करते हैं। अपने इम्प्लाई का जैसे ख्याल करना चाहिए, हम वो ख्याल नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ें जो है सब वो किताबों में होती हैं, कुरान में है, हदीस में है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर है। अमल में कहीं जाएंगे तो आपको कोई चीज़ नजर नहीं आएगी इसकी जो है। उनके साथ अच्छा सलूक करना, किस तरह से अखलाक से पेश आना है, क्या करना है, उनके जो है मसाइल को समझना, चीजें जो है उन सब चीजों के ताल्लुक से तो कहीं भी आप ऐसी कोई चीज जो है नहीं पाएंगे। अलग बहरहाल ये मसला है, मैं तो ये बीच बीच में जो आपके सामने चीजें पेश करता हूँ वो इस्लाम के लिहाज से ही पेश करता हूँ, लेकिन बहुत दिल दुखता है कि जब हम इस्लाम दूसरों के यहाँ देखते हैं, यानी हमारी इस्लामी तालीमात पर दूसरे लोग अमल करते हैं, और खुद जो इस्लाम की पाबंदी के, और या कहिए कि इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे होते हैं, उनके यहाँ उसकी पाबंदी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं ये बातें आपके सामने जिक्र करता हूँ। किसी की बुराई करना वो मकसद नहीं होता है, या कोई और चीज नहीं होती है। बस ये है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, जिनके यहाँ भी जो कमियां पाई जाती हैं कि वो अपनी उन कमियों को दूर कर सके और समझ सकें कि इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है, हर मैदान में दिया है। तो ये इम्प्लाई का भी जो सिस्टम है, जो ये मजदूरी पेशा जो उजरत का जो सिस्टम है, इसमें मजदूरों के हुकूक के जो है कि जो हिफाजत की है इस्लाम ने, जबकि मालिकों की तरफ से उन पर बहुत जुल्म होता था। और दोनों को बैलेंस किया। ये नहीं है कि जो है अभी क्या होता है निजाम में कि किसी एक को लोग क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, दूसरे को नीचा कर देते हैं। मजदूरों के हुकूक का ख्याल किया तो कहीं मालिक को उसमें परेशानी हो जाती है, मालिक को जो है वो परेशानी उठानी पड़ जाती है। तो इस्लाम ने वैसा भी नहीं किया ना, इसको बैलेंस रखा है। जो उजरत पे रखते हैं उनको भी बहरहाल, और जो उजरत पर काम करते हैं, उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की भी बड़ी सारी गलतियां होती है। वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा नहीं करते, अपने काम में मुखलिस नहीं होते, सही से काम नहीं करते, उजरत तो लेने आ जाते हैं लेकिन काम ढंग से नहीं करते,
या जैसे आम तरीके से मजदूरों की बड़ी शिकायत होती है, जो कि जो है आप जब तक हैं तो ठीक से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो काम में बड़ी सुस्ती होती है, आप देखेंगे तो काम जो है वो ढंग से नहीं करते, बिल्कुल पीछे रहना पड़ता है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो मजदूरों को भी ये होता है कि उनको अपने काम में मुखलिस होना होता है, और अपने वक्त की पाबंदी करनी होती है कि आपको जो वक्त है और वक्त जो दिया गया है आपके लिए कि आपको इस वक्त पे काम करना है, और उस वक्त में जो काम आपके सुपुर्द किया गया है उस काम को पूरे इखलास के साथ और इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह ताला की निगरानी आपके साथ है, वो जो एहसान का मामला है ना हदीस जिब्राइल में, वो सब यहाँ पे आता है, उसी के साथ आपको काम करना होता है। तो मजदूरों के लिए भी ये हिदायत इस्लाम के अंदर है कि मजदूर के लिए यहाँ तक कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लफ्ज तो हदीस में वो गुलामों का है, उस जमाने में गुलाम यही लोग ज्यादा इस तरह के काम करते थे उस जमाने में, तो इसीलिए उनका है मौला का लफ्ज आता है कि जब ये अपने मालिक का भी हक अदा कर दे और जो अल्लाह के हुकूक हैं वो भी अदा करे तो इसको दुगना अजर मिलता है, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहाँ पर भी तंबीह की गई है कि इनको अपने कामों में बड़ा मुखलिस भी होना चाहिए। तो ये चंद बातें थी, वक्त हो गया, अजान हो गई, तो मैं आज का दर्स खत्म करता हूँ। कोई सवाल हो तो आप चाहें तो जल्दी में सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जैसे कि आपने बताया कि दिवाली बोनस और क्रिसमस का बोनस, तो हम्म हमारे यहाँ शेख दिवाली में ड्राई फ्रूट्स देते हैं और क्रिसमस में केक बांटा जाता है। हम्म हालांकि वो आप हमारे सैलरी में से कुछ हिस्सा कटता है उसमें से, तो हम्म। क्या ये वो चीज़ें वो खा सकते? आपके सैलरी में से कटता भी है? जी जी, कुछ वो तो पैसा है। फिर आपका हुआ ना, सैलरी का हुआ, आपका हो गया वो, अपना उनका क्या हुआ वो? ये जी तो सवाल ही नहीं आता ना, क्योंकि वो तो आपका है, यानी आप ही के पैसे में से कुछ चीज खरीद करके आपको दिया कि लीजिए खा लीजिए, बस, और क्या है। ये वैसे होता है जैसे आप कहीं प्रोग्राम में गए, सफर में गए, तो आपने क्या किया, आपस में तकसीम कर लिया कि जो खर्चा आएगा हम बांट लेंगे, तो उस तरह की शक्ल हो गई है जी। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी। और कोई बताइए, कोई और सवाल हो तो। शेख एक सवाल था। मैंने एक आलिम से सुना था कि सबसे अच्छी कमाई गजबे की कमाई है, यानी जो माले गजवा। गनीमत। जी। हाँ, माले गनीमत जो ये है ना, इसी को भी वही मानते हैं हाथ की कमाई। समझ गए क्या? जी जी। हाथ की कमाई जो समझे ना, जो अभी चार बने बताया ना, उसी में से एक हिस्सा है ये। तो ये बाकायदा जो है उस जमाने में जो सैलरी बेस नहीं होते थे, जो सोल्जर्स होते थे ना, वो सैलरी बेस नहीं होते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। उनको जो माले गनीमत मिलता था उसमें से ही दिया जाता था, कि एक हिस्सा अगर वो घोड़े पर सवार नहीं है, पैदल गया हुआ है, तो एक हिस्सा मिलता था, घोड़े पर है तो उसको तीन हिस्से मिलते थे, घोड़े को दो हिस्से और एक हिस्सा उसका। तो वो माले गनीमत उनके दरमियान तकसीम किया जाता था, और ये उनकी जो है बहुत बड़ी कमाई होती थी, तो ये सबसे बेहतर है, उसमें कोई शुबह नहीं है, लेकिन इसको भी जो है वो हाथ की कमाई में ही शुमार कर लेते हैं जी। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह। शेख के रमजान में मदरसा के चंदा चंदा लेने आते हैं ना, तो शेख कुछ लोगों ने बोला कि उनको सैलरी नहीं मिलता, ये जो चंदा जो जमा होता है उसमें से उनको परसेंटेज मिलता है। तो ये किस शक्ल में आता है शेख के? सैलरी दे जायज है, अगर। उसमें कोई मसला नहीं है। परसेंटेज जो है, उजरत जो होती है ना, दो तरह की होती है। जो है उजरत, एक ये होती है कि आपको जो है मुतय्यन कर दी जाती है कि आपको इतनी मिलेगी, और एक होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका परसेंटेज मुतय्यन कर दिया जाता है कि आपको इतना परसेंट उसी में से मिलेगा। तो ये उजरत की जो तायीन होती है ना, दो तरह से होती है, ये भी जो है तायीन ही है। जैसे मैंने बताया था आपको कि खेती करने के लिए जमीन को किराए पर देते हैं, तो जो आदमी काम करता है ना उसमें, तो आधा वो ले लेगा और आधा जो जमीन का मालिक है वो ले लेगा। तो ये तो मेहनत इसकी वही थी,
ये आधा कहा गया तो ये परसेंटेज ही हुआ ना, ये आधा। अब वो कितने क्विंटल होगा वो तो मुतय्यन नहीं रहता, वो जितनी खेती होगी उसी के लिहाज से होगा। अभी आप काम करते हैं ना, जो है बाज जो जैसे कोई आदमी एक दुकान पे काम करता है, एक आदमी, तो दुकान के मालिक ने कहा कि आप जितना सामान बेचेंगे उसका जो प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट हम आपको देंगे। तो जायज है ना ये? जी हाँ शेख। बोलिए। तो जी। यही मामला उसमें भी होता है कि वो परसेंटेज के लिहाज से कभी मुतय्यन करते हैं, तो वो भी उजरत ही है, उजरत की शक्ल होती है। कब ये मुतय्यन करते हैं? जब उनको ये डर होता है कि हम उनको सैलरी दे देंगे और ये परसेंटेज मुतय्यन नहीं करेंगे, सैलरी दे देंगे कि आपको हम 20,000 देंगे इसका, तो उसमें खर्चा भी फिर अलग से देना पड़ता है। उनके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, उनका जितना भी खर्चा आएगा वो देना पड़ेगा, सफर का खर्चा। तो सफर का खर्चा और ये सैलरी मिला करके वो बहुत ज्यादा हो जाता है उनका, उतने वो चंदा नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि परसेंटेज में तो उनको बहुत ज्यादा मिल जाता होगा, वैसा नहीं है वो। एक 40,000 अगर उसने वो किया, चंदा किया, तो 20,000 अगर वो 50% भी रहेगा तो 20,000 हुआ। ये 20,000 में सैलरी भी है उसकी, और पूरे रमजान की सैलरी, और सफर का पूरा खर्चा। मेरे भाइयों, अगर कोई आप में से कोई जाएगा ना ये काम करने के लिए, तो 20,000 से ज्यादा उसका सफर का ही खर्चा आ जाएगा। वो बेचारे मस्जिदों में सो करके अपना किसी तरह से बचा लेते हैं, मामूली सा कुछ खा के कभी भूखे रह गए, ऐसे बचा लेते हैं। तो यही होता है उनका मामला। जी। और कोई सवाल तो नहीं है? वक्त हो गया है, बात को यहीं ख़त्म करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।